So, in this session, we will be solving a very interesting problem for IIT Advanced. Mostly, this problem will be helpful for IIT Advanced because this is a very good problem, conceptual problem. So, the problem is if x is given as 4l upon 1 plus l square and y is given as 2 minus 2l square upon 1 plus l square, where L is a parameter, it is L actually, not I. Let me make the changes. This is L. So X is given as 4L upon 1 plus L square, Y is given as 2 minus 2L upon 1 plus L square, where L is a parameter and range of f of xy is x square minus xy plus y square. What is the range of f of xy? X square minus xy plus y square is AB. रेंज डिफाइन किया गया है AB क्लोज्ड इन द क्लोज ब्रैकेट देन A प्लस B इज इक्वल टू. तो रेंज का मतलब क्या हो गया? A क्या रहा होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज एंड B क्या रहा होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज विल बी A एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज विल बी B. So we have to find out the minimum value of range plus maximum value of range. So what we have to do actually in this problem? In this problem, we have to find out the minimum value of function f of xy and we have to find out the maximum value of, we have to find out the minimum value of this function f of xy and then again we have to find out the maximum value of f of xy. Then what we'll do? We will add the minimum value and maximum value. So that we have to find out in this problem where x and y is defined like this. So this is a very interesting kind of problem. So let's start solving this. So as per the given problem, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे L इजिकल टू tan थीटा सब्सटीट्यूशन विल वर्कआउट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले ले तो ये फॉर्मेट क्या आ जाएगा? 2 into L by 1 plus L square, that will give 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 theta. लेट मी रिपीट. अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 2L upon 1 plus L square, और अगर L को tan थीटा पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 into 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So after substituting this, what we will be getting? 4 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो 2 कॉमन लेने पे बच गया क्या? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So that is nothing but the formula of sin 2 theta. So 2 as it is and sin 2 theta. Similarly, अगर यहाँ पे हमने पुट किया है tan theta तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या? 2 into 1 minus tan square theta, 2 bracket 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta भी एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है? ये होता है cos 2 थीटा. ये क्या होता है? cos 2 थीटा. तो जैसे ही यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 जैसे ही कॉमन लिया तो 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो 1 minus tan square upon 1 plus tan square theta क्या दे देगा? cos 2 थीटा. तो ये काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है. तो अब क्या करेंगे? जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था, ये एक्चुअली हमारा था वैल्यू किसका? f ऑफ एक्स वाई. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार. दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई. मतलब फंक्शन f क्या है? x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है. f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. तो अब क्या करना है? ये फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बिकॉज सिंस वी हैव एज्यूम्ड x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, x को हमने एज्यूम किया था यहाँ पे, L को एज्यूम किया था हमने tan थीटा, और x का वैल्यू यहाँ पे जो भी दिया हुआ था तो वहां से x का वैल्यू रिजॉल्व करके आ गया था 2 साइन थीटा और y का वैल्यू आ गया था 2 cos थीटा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन. तो x का वैल्यू जो 2 साइन 2 थीटा था और y का वैल्यू था 2 cos 2 थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर मीन्स क्या? वाई का वैल्यू आया हुआ है 2 cos 2 थीटा, जिसका की स्क्वायर दे देगा ये 4 cos स्क्वायर 2 थीटा. लेट मी रिपीट. ये x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा
ये हमारा y का वैल्यू मिला हुआ है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये दे देगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, और x इंटू वाई का वैल्यू ये आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहां से 4 और यहां से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा एंड माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा को फॉर्मूले में ले सकते हैं, साइन 4 थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो फाइनली हमारा वैल्यू क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 माइनस 2 साइन 4 थीटा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई को काफी हद तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार मैक्सिमाइज करना है और एक बार मिनिमाइज करना है और दोनों का एडिशन निकालना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें ये वाला फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। तो साइन 4 थीटा का वैल्यू मैक्स टू मिन कैसे निकालेंगे, वी नो दैट, क्या पता है हमें, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है, वी नो वेरी वेल। साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो सकता है -1, मैक्सिमम हो सकता है +1। तो अगर हमें इस वाले वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमम होना चाहिए होगा, और मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और जब इसको मिनिमाइज करना हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा दैट इज +1। तो अभी हम लोग इसका निकालने वाले हैं मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जो कि होता है +1। तो +1 इंटू 2 -2, सो 4 - 2 आ गया 2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे साइन 4 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 लिया तो ये हमें मिल गया मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 2। अब हमें एफ ऑफ एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, उसके लिए इसका वैल्यू साइन 4 थीटा का मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि होता है -1। तो साइन 4 थीटा का -1 मिनिमम वैल्यू लेंगे तो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना मिल गया, +6, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना मिल गया, +2। तो ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। सो यही प्रॉब्लम था एंड दिस इज एक्चुअली मेंस से थोड़ा ऊपर, मतलब एडवांस के काफी क्लोज है ये क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मेंस से थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं ऐसा। तो इसका आंसर टेक्निकली कितना आ रहा है, 8। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर नाउ। थैंक यू।